नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 इस साल जो पूछा गया था उसके ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस। सो फोर्थ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड was what is sea surface temperature rise and how does it affect the formation of tropical cyclones. Now this question can be divided into two parts. The sea surface temperature rise, that is the first part of the question, and the second is how it affects the formation of tropical cyclones. So let's start answering the first part of it. Sea surface temperature rise is basically the gradual increase in the sea surface temperature because of increased greenhouse gases in the atmosphere. That means it's a part of global warming caused by the human activities in the major cases. However, it is also because of some of the natural reasons. So now that means you have to explain over here what are the man-made reasons and what are the natural reasons. So in man-made reason we can say that because of the vehicular emissions, the increased burning, and along with that there are so many use of various gadgets, and because of that whatever global warming emitting agents such as carbon dioxide which is getting released in the atmosphere, that causes increase in the temperature of the atmosphere. So that is the first part you would write. Now the second aspect of this is sea surface temperature rises because of more and more absorptions by the sea of the carbon. Now see, in the atmosphere when the greenhouse gases increases such as CO2, the sea surface absorbs significant amount of it. As we know that the 90% of the carbon which is there, the carbon dioxide which is there in the atmosphere is being absorbed by the oceans. Because the concentration of carbon dioxide increases, because of that the ocean surface would absorb more and more of it. You would say how exactly do they absorb that? So there are a lot of phytoplanktons which are there in the oceans, and they also perform the photosynthesis. For that matter, the process of photosynthesis is majorly driven through the oceans rather than on the land. Now because of that, more and more carbon dioxide gets sucked inside the ocean. When the carbon dioxide would go into the ocean, even the ocean would also increase its temperature, and that leads to increase in the temperature of the oceans. But along with that, there are certain natural reasons as well. Natural reason as in the increase in the, there is some change in the tilt of the Earth's axis, and along with that, change in the revolutionary orbit of the Earth, that also changes or fluctuates the temperature of the Earth up to certain extent. So these are the reasons because of which it is said that in last century or so, the temperature of the sea surface has increased, which is also called as sea surface temperature. Now in order to justify this, what you can do is you can draw the diagram which I have drawn over here, where it is being shown that since 1880 all the way till 2022, how exactly the temperature has risen. For that you can use this graph which is being shown over here. Now its impact on the tropical cyclones. Now the tropical cyclone is nothing but the power which is getting released because of this increased sea surface temperature. Now that energy, which is the power of latent heat, that drives the tropical cyclone, right? That means we have to understand the power dissipation index of it. Now that diagram is being shown over here, where I've shown that since 1950 all the way till 2022, how much power dissipation index has increased. You can see that its upward trend is always there in the last century or so, and that's why when the latent heat has increased, that has led to increase in the tropical cyclones. So that diagram we can draw over here, and then you can start explaining it. Now how would I explain that? कैसे explain करूँगा मैं इसको? ये बताएंगे कि भाई जब tropical cyclone बनता है, so tropical cyclone forms in the tropical area. Why? Because in the tropical area, the sea surface temperature during the winter season, specifically during winter season or at the end of the winter season, or maybe in the spring as well, it is higher. क्यों? क्योंकि there is a difference in the specific heat of the land and water. Land फटाफट गर्म होती है और फटाफट ठंडी होती है, while the ocean they warm up slowly, they cool down slowly. इसीलिए winter season आने के बाद ही ocean का temperature जो है वो बढ़ता है. Because ocean temperature increases in the winter season, generally what we see is tropical cyclone generally arrives in the winter season. Now what has happened is, over the period of time, because of increase in the sea surface temperature, the arrival of tropical cyclone has also increased. They are started coming little bit early. That's the first change in the tropical cyclone. क्यों tropical cyclone थोड़े जल्दी आते हैं? कैसे? देखो tropical cyclone बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस है वो कैसी है? जब सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस वजह से इवेपोरेशन होती है. इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो उस वजह से जो इवेपोरेशन होके ऊपर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर जाएगा, दैट मॉइस्चर बेसिकली विल कंडेंस एंड इट विल रिलीज द लेटेंट हीट. Now this latent heat basically results into formation of the circulation or the intensity of the tropical cyclone. More the latent heat, more will be the tropical cyclone and the bigger it will be.
जितना ज्यादा लेटेंट हीट निकल के आएगा उतना स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन होके वो उतना बड़ा बनता चला जाएगा। अब जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और उस वजह से उसकी वजह से होने वाला डिस्ट्रक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमने अगर इसमें लिखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन विल बिकम मोर एंड मोर पावरफुल। सेकंड, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल बिकम मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट इन नेचर एज वेल, एज यू कैन सी ओवर हियर, बिकॉज द पावर डिसिपेशन इंडेक्स, ज्यादा पावर है तो ओशन की अलग अलग सतह पर ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा बनेंगे। तो आपने देखा होगा आजकल कई बार जो पिछले सेंचुरी में नहीं दिखा करती, जो ट्विन साइक्लोन की जो कंसेप्ट है दैट हैज इमर्ज्ड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बन गई है कि एक ही वक्त एक जगह पे 2 से 3 साइक्लोन भी बनते हुए देखे गए। सो द साइक्लोन्स फ्रीक्वेंसी वुड आल्सो इंक्रीज। थर्ड इज द टाइमिंग ऑफ द साइक्लोन हैज आल्सो चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। In like a century before, the tropical cyclone used to arrive in the month of December or so, but then now that timing has changed little bit early, and then now cyclones are coming in the month of November. For that matter, sometimes we have also seen the cyclones coming in the month of October or so. इतना ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज या इंटेंसिटी में चेंज आया हुआ है कि some of the cyclones are persisting their overall intensity even after they are arriving on the land. That means the duration of the cyclone has also increased. तो हमने साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये बताने के लिए आप किसकी बात करोगे, इंटेंसिटी। मतलब एक साइक्लोन के भीतर जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन वुड इंक्रीज। दूसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन वुड इंक्रीज, the number of times they are occurring, that would also increase. The timing of the cyclone has also changed over here. The cyclone which used to come in the month of December, now that cyclone is arriving a little bit early, so now the cyclone is arriving earlier. ठीक है, सो दीज आर द इंपैक्ट्स ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन व्हिच यू वुड बी राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन द स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ये सवाल पूछा हुआ है इसको। तो अब लार्ज सिटीज ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करती है, ये मैंने एक पीछे एक चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट आप एग्जाम में निकाल सकते हो। मुझे पता है कि ये चार्ट निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो ये नहीं कह रहा हूं कि सभी कुछ निकालो इसमें, मगर इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक एंगल कवर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर कर सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर डायग्राम बनाना अलग से काफी डिफिकल्ट होता है, मगर ऐसे कुछ चार्ट्स अगर आप बना दो तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वन ऑफ द डायग्राम। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने एक इंडिया का मैप बना दिया और वहां पर आपने कुछ मेजर सिटीज बता के वहां पर सर्कल करके आपने बता दिया कि कंसंट्रेशन की कितना परसेंटेज इंडिया का माइग्रेंट्स जो है वो इन्हीं 4 सिटीज के भीतर है, जिसमें आप दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई की बात करोगे। इसी के साथ साथ बैंगलोर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दीज सिटीज कैन शो कि इतना लाइक सिग्निफिकेंट मोर देन 60% ऑफ द टोटल माइग्रेंट्स व्हिच आर देयर इन द कंट्री, दे आर सिचुएटेड इन दिस सिटीज इटसेल्फ। दैट विल शो दैट द माइग्रेंट्स आर ट्राइंग टू मूव मोर टुवर्ड्स द बिगर सिटीज इटसेल्फ। नाउ इसमें हम एक रिपोर्ट बता सकते हैं जो यूएन ने पब्लिश करी थी, है ना। अब वो यूएन की जो रिपोर्ट है जो आई थी, वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, खास करके इंडिया जैसी कंट्रीज जो है, उसमें टॉप हेवी स्ट्रक्चर देखा गया है, एक टॉप हेवी स्ट्रक्चर। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर वी सी स्टेप माइग्रेशन, स्टेप माइग्रेशन मतलब क्या होगा कि जो आदमी विलेज में रहता है वो टियर 1 सिटी में जाएगा, उस मतलब टियर 5 सिटी में जाएगा, जो टियर 5 सिटी में वो टियर 4 में जाएगा, टियर 4 वाला टियर 3 में, टियर 3 वाला टियर 2 में। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक इक्वल तरीके से किया जाता है, काफी रादर देन सेइंग इक्वल, इक्विटेबल तरीके से किया जाता है। ठीक है, इक्वल और इक्विटेबल में अंतर है। नाउ इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज लेस, and whatever resources which we have, we try to delve on we try to distribute those resources more in only the regions which are already developed। जो already develop हो चुके हैं उन regions में हम वो resources लगा देते हैं। तो उसी वजह से जो cities already develop हो चुकी है, जिनमें infrastructure relatively better है, उन्हीं cities में वो infrastructure और resources बढ़ाए जाते हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि ज़्यादा opportunities भी उन cities में ही पनपती है, और इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा tier 1, tier 2, tier 3 cities को भी छोड़ के कहाँ पर आते हैं, टियर 5 सिटी, टियर 1 सिटीज में और या फिर मेगा सिटीज में। तो ये हुआ टॉप हेवी स्ट्रक्चर, जो वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई थी उसने ये कहा था। नाउ
in developing countries, what are the cases? What happens is when we talk about the developing countries here, the opportunities and entrepreneurship, this is one of the aspect. अगर आप developing countries में देखो, जैसे for example in India, you can see the entrepreneurship opportunities are mostly available in the countries such as Delhi, Bombay, Bangalore. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि स्मॉल सिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, मगर होता क्या है कि जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया या प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज हो गई, लोन डिसबर्सल मैकेनिज्म हो गया, ये चीजें काफी हद तक स्पीड फास्ट हो जाती है अगर आप किसी डेवलप्ड सिटीज में। फॉर दैट मैटर किसी भी बिजनेस के फ्लरिशमेंट के लिए वहां पर एक कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ आपको काफी हद तक कनेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो कनेक्शंस आपको जो सिटीज ऑलरेडी है आसपास, जो बड़ी सिटीज है, वहां पर ज्यादा आसानी से बनते हैं। आपको अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ अगर कनेक्ट करना है, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना है, सो यू हैव टू रीलोकेट योर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ऑल द वे इन द लार्जर सिटीज। तो यहाँ पर मार्केट एक्सेस, मतलब आपको अगर कस्टमर चाहिए तो वो मार्केट एक्सेस भी आपको वहीं पे मिलेगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्राउड इज स्टेइंग ओवर देयर। एंड अलोंग विद दैट सम ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने बताया वीसीज हो गया या फिर लोन डिसबर्सल हो गया, ये फाइनेंशियल सर्विसेज आपको लार्ज सिटीज में ही मिल पाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, दीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मेजरली अवेलेबल, और फॉर दैट मैटर इन डेवलपिंग कंट्रीज इट इज परसीव्ड दैट दोज अपॉर्चुनिटीज आर मेजरली अवेलेबल इन द इन द लार्जर सिटीज इटसेल्फ। तो मगर ये देखो हमेशा सही है नहीं। इंडिया में जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें ये देखा गया है कि पुश माइग्रेशन ज्यादा होता है पुल माइग्रेशन से ज्यादा। तो पुल मतलब जब सिटीज में कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है तो लोग वहां पर माइग्रेट करते हैं, मगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज होने का एक तरीके से भी एक आभास होता है कि चलो यहाँ पर तो गाँव में तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, या छोटे शहरों में तो कुछ है नहीं, बड़ी सिटी में जाके देखते वहां पर शायद कुछ मिल जाए। तो इसीलिए जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, it is perceived that it is available more in the larger cities. Along with that, higher wages. जो काम आप छोटे शहरों में करते हो और जो काम आप बड़े शहरों में करते हो, वो वही काम आप देखोगे कि बड़े शहरों में उसका जो वेजेस है आपको ज्यादा होगा। इसके पीछे कई सारे कारण है। सिटीज जो होती है, बड़ी सिटीज काफी बड़ी होती है, तो उसमें आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट जुड़ जाता है, आपके एजुकेशन का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, हेल्थ केयर कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है। तो इसी वजह से जो आपको आपके जॉब में जो पैसे मिलते हैं, वो पैसे भी रिलेटिवली उसी काम के लिए ज्यादा मिलते हैं। तो ये हुआ हायर वेजेस। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो होती है, अब देखो कोई अगर फॉर्मल इकोनॉमी अगर कहीं पे सेटल ज्यादा होगी तो उस फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़े हुए इनफॉर्मल सेक्टर्स भी वहां पे पनपते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में देखो, बैंगलोर हो गया या दिल्ली हो गया, यहाँ पर जो मेड कल्चर है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ लेट्स से बोथ कपल आर वर्किंग आउटसाइड, इन दैट केस घर में जो मेड कल्चर है ये आप लार्ज सिटी में ही देखोगे। छोटे सिटीज में तो आपको अभी भी वहां पर जॉइंट फैमिली होगी, या फिर अभी भी वहां पर एक जो वुमेन है दे आर स्टिल वर्किंग इन द हाउस एज अ हाउसवाइफ ओनली। बट इन द लार्जर सिटीज दिस कंसेप्ट इज ब्रेकिंग सिग्निफिकेंटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वुड सी दैट द फॉर एग्जाम्पल दिस मेड कल्चर और ग्रोसरी डिलीवरी कल्चर, फूड डिलीवरी कल्चर, तो इसके लिए जो एक इनफॉर्मल सेक्टर के लिए लगने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी तादाद भी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो इस वजह से इवन द पीपल हु आर रिलेटिवली less educated, those people are also tend to get more employment opportunities, better employment opportunities in the larger cities. Along with that, education and skill development, access to quality education. आप शहरों में जाते हो तो वहां पर क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा होता है, एमिनिटीज ज्यादा होती है, स्किल डेवलपमेंट भी वहां पर रिलेटिवली ज्यादा होता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जिसमें आप लिखोगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल मोर इन द लार्जर सिटीज, दैट्स ऑब्वियसली ट्रू। ट्रांसपोर्टेशन और जो यूटिलिटीज होती है, दो यूटिलिटीज जैसे शुद्ध पानी की व्यवस्था होना, है ना, बिजली की व्यवस्था होना, सो दीज थिंग्स एंड बेटर हाउसेस एज वेल, दीज थिंग्स आर अवेलेबल मोर इन द developed cities. Even the better roads are also there, communication facilities, transportation, public transportation facilities, all these facilities are available better over here. तो quality of life जो होती है वो देखा जाए तो cities में ज़्यादा होती है अगर आप materialistic quality of life देखें तो, मगर cities, large cities doesn't always necessary leads to increase quality of life. Okay, तो आप अपने आंसर में ये नहीं लिख सकते कि quality of life better हो जाएगी वहां पर, क्योंकि quality of life is also the one in which you remain healthy. मगर cities में लोग जनरली हेल्दी नहीं रहते और बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो materialistic quality of life is better in the large cities. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में आप लिखोगे कि सोशल नेटवर्क्स एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। आप अगर लार्ज सिटी में हो तो आपका सोशल नेटवर्क भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप
जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हुई है उसी स्तर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे और आपका सोशल नेटवर्क काफी स्ट्रांग बनता चला जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, आप देखो बड़ी सिटीज जो होती है वो जनरली कॉस्मोपॉलिटन होती है, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लोग वहां पर आते हैं, तो इसी वजह से दीज सिटीज बिकम कॉस्मोपॉलिटन एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर द सेक्युलर टेंडेंसीज इमर्जेस। इसमें किसी की भी क्षमता जो है वो उसके कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे नहीं आकी जाती है, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ विच जनरली द सिटीज प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एनी इंडिविजुअल टू ग्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन्स कास्ट, रिलीजन, क्रीड और सेक्स। नाउ social and cultural facility factors के बाद you can also add government and administrative services. When you live in a larger cities, you tend to get more government facilities, government support is also better over there, legal support is also better over there. So these are all aspects which you can write कि लोग लार्ज सिटीज की तरफ क्यों जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आपने ये भी लिखना है कि लोग लार्ज सिटीज की तरफ जाते हैं तो छोटी सिटीज को लोग जनरली क्यों छोड़ते हैं। तो इसमें टॉप हेवी स्ट्रक्चर का तो आप लिखोगे कि द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर इन सच अ वे दैट ओनली लार्ज सिटीज टेंड टू गेट द मेजर पाई of the economic development. That's one aspect. Second is मतलब इसका मतलब poor infrastructure, road, रास्ते, facilities वहाँ पर नहीं है. Mostly the people are dependent upon the primary sector. तो secondary और tertiary sector वहाँ पर बहुत ज़्यादा develop नहीं होता. Along with that, the social structure in the smaller cities are such that the people over there are very much like significantly orthodox thinkers. इसी वजह से सबको एक equal opportunity नहीं मिल पाती grow करने के लिए. So these are some of the reasons because of which people tend to migrate more in the large cities. Okay, now question number 6. What is the phenomena of cloudburst? Explain. It's a very simple question. Now, whenever the question is very simple, what happens is everybody tend to write the entire content of it. बट जो बच्चा डायग्राम सबसे बेहतर निकालेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब यहां पर हमने एक थोड़ी इनोवेटिव डायग्राम निकाली है। अगेन दिस डायग्राम इज नॉट देयर इन योर बुक, दैट्स व्हाई दिस डायग्राम में फेच मोर मार्क्स। यहां पर हमने ये बताया हुआ है कि आसमान में जब हवा स्ट्रांगली ऊपर जाती है तो एक छोटा क्लाउड बनता है, मगर इन अ क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन व्हेन द स्ट्रांग अपड्राफ्ट ऑफ एयर इज देयर देन हाउ क्लाउड कीप बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर। अब नाउ दिस पर्टिकुलर आंसर यू कैन डिवाइड इट इनटू सर्टेन पार्ट्स वेयर first you can write that there is a very strong updraft of an air. That's the first point. Second is the condensation caused because of the strong updraft of an air. The third is formation of the raindrop and falling of this rainfall. However, the fourth point is prevention of the raindrops falling down and that results into formation of the further cloud, the bigger cloud. अब इसको explain करते हैं एक बार, ठीक है। क्या होता है ना, इन द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट विच जनरली हैपेंस इन द माउंटेनस एरियाज। ऐसा क्यों? तीन तरीके होते हैं जिस वजह से हवा ऊपर की तरफ राइज करती है। फर्स्ट इज कन्वेक्शन, सेकंड इज ओरोग्राफिक बैरियर एंड थर्ड इज फ्रंटल एक्शन। माउंटेन बैरियर की वजह से हवाएं जनरली बहुत तेजी से मैकेनिकली ऊपर राइज करती है, ठीक है। कन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि गर्मी होगी, हवा गर्म होगी एंड देन ओनली द सरफेस से हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी, जो जनरली काफी स्लो होता है। इसीलिए और फ्रंटल एक्शन यहां पर ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज्यादा होता है नहीं, इसीलिए जो क्लाउड बर्स्ट की फिनोमेना है वो हम माउंटेनस एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात यह है कि इसका मतलब क्या क्लाउड बर्स्ट सिर्फ माउंटेनस एरियाज में ही होता है क्या? ऐसा भी नहीं है, मगर लगभग सारी क्लाउड बर्स्ट की प्रक्रियाएं जो है दैट इज समथिंग वी कैन सी इन द माउंटेनस एरियाज, ठीक है, बट नॉट ऑल। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन द माउंटेनस रीजन व्हेन द एयर राइजेस अप विद अ स्ट्रांग फोर्स, that air forms cloud. Because of updraft of an air, it takes moisture along with it in the upward direction and that moisture gets condensed. Condensation results into formation of the cloud. Sometimes this updraft is very fast. Why? Because of the strong moving air. तो हवा अगर बहुत तेजी से चल रही है तो हवा तो ऊपर जाएगी और उस वजह से होगा कंडेंसेशन, जिसे संघनन कहते हैं। ना कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड बनेगा तो रेन ड्रॉप्स बनेंगे। These raindrops will try to fall down over the surface. मगर अब क्लाउड बर्स्ट ये एक स्पेशल फिनोमेना, इसमें क्या होता है, जो ये अपड्राफ्ट करने वाली एयर है, जो ऊपर मूव करने वाली एयर है, दिस एयर इज वेरी स्ट्रांग एंड इट डज नॉट अलाउ these falling raindrops to come down over the surface. That's why they are also being thrown up along with the upward movement of an air. तो हवा ऊपर जा रही है, उसके साथ वो उन रेनड्रॉप्स को भी ऊपर फेंक देती है। अब होता क्या है कि वो रेनड्रॉप तो ऊपर चला गया एंड व्हाटएवर एयर व्हिच इज राइजिंग अप इन द स्काई, दैट एयर आल्सो गेट्स कंडेंस्ड। तो इस वजह से और न्यू रेनड्रॉप्स भी बन जाते हैं। दैट मींस द ओल्ड रेनड्रॉप्स हैव फॉर्म्ड and the new raindrops have also formed.
Now this phenomena keep happening, keep continuing again and again. This happening again and again. What happens is, ये बार बार होने की वजह से जो है क्लाउड बड़ा 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 होता चला जाता है. क्यों होगा ये? क्योंकि हवा का ऊपरी जो मूवमेंट है, ऊपर जाने वाला जो मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एयर, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विच डज नॉट अलाउ एनी रेन ड्रॉप टू फॉल ओवर द सर्फेस. अब अचानक से जब हवाएं रुक जाएगी तो ऊपर जितना भी पानी अक्यूमुलेट हुआ है, ऑल ऑफ दैट वाटर विल फॉल सडनली ऑन द ग्राउंड. So sudden downpour of the water, that will be the last point of it. तो उसमें होता क्या है कि दो कंडीशन है. एक तो ऊपर मूव करने वाली जो हवा है वही खुद वीक हो जाए, जिस वजह से पूरा ऊपर का पानी नीचे गिर जाएगा, या फिर the overall accumulation of water becomes so much that this upward moving air will not be able to control them, and that's why they will fall down. Now this is called as the cloud burst. Cloud burst का अगर फैक्ट लिखना है आपको तो ये लिख सकते हैं कि the amount of rainfall is so much that in a given acre of land more than 80,000 tons of water can fall at the same time. इतना ज्यादा पानी अगर गिरेगा तो that can result into flash floods, that can result into a deluge in some of the areas. आपने देखा होगा उत्तराकाशी फ्लड हुआ है, या हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड के कई सारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में अगर जब एक फ्लड जो आता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्लाउड बर्स्ट इज द रीजन. Cloud burst is associated with some of the secondary disasters as well. Because of the cloud burst, it also results into a landslide or a significant mass movement. Because of the cloud burst, the amount of water in the river increases, which can cause a significant flood. तो flood भी उसी की वजह से आता है. तो ये सारे एक secondary disaster की तरह लिख सकते हैं हम लोग cloud burst में. ठीक है? So this is the answer for the cloud burst. Thank you. Okay, now let's understand the question number 14. The groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How may it affect the food security of India? अब ये सवाल पूछा गया था. Again, कोई भी आप सवाल देखते हो ज्योग्राफी में खास करके, तो make sure that you draw some diagrams in it. डायग्राम नहीं है तो फ्लो चार्ट निकालो, फ्लो चार्ट नहीं है तो कुछ तो करके कोई ब्लॉक डायग्राम निकालो जिससे आपके आंसर्स में एक एनहांसमेंट हो. मैंने दो तरीके के यहाँ पे कुछ ब्लॉक डायग्राम्स बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक साइकिल बताई हुई है. ये फार्मर की साइकिल है, ये कंज्यूमर की साइकिल है. तो इसमें फार्मर्स में अगर आप देखो तो ग्राउंड वाटर के डिक्लाइन होने की वजह से, तो बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर, वल्नरेबिलिटी जो होती है एक फार्मर की मॉनसून से लेके वो बढ़ती है. मॉनसून की वल्नरेबिलिटी, क्योंकि मॉनसून के वैगरीज तो सबको पता है कि मॉनसून कब आता है, कब जाता है, कब बारिश होगी, कोई भरोसा तो है नहीं. इसके अलावा चांसेस ऑफ क्रॉप लॉस ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस. क्रॉप लॉस अगर इंक्रीज हुआ है तो उसमें फार्मर के ऊपर डेट बढ़ता चला जाता है. डेट बढ़ा होता है, रिड्यूस इन एग्रीकल्चर इनपुट, पॉवर्टी बढ़ेगी फार्मर की, और वो अपने खेतों में जो अगले साल जो सीड उसने डालने हैं या फिर उसको फर्टिलाइजर यूज करने हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर नहीं पाएगा. तो क्वालिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ दिस. जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है तो फार्मर बाकी जो उसके पास जो अवेलेबल संसाधन है उनको ज्यादा यूज करने लग जाता है. तो इसमें एक मोर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, ज्यादा से ज्यादा इरिगेटेड फैसिलिटीज, इरिगेशन जो है जैसे ट्यूबवेल वगैरह जो है उसका ज्यादा यूज किया जाएगा, और उसी के चलते फिर से ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्लाइन होता चला जाएगा. तो ये हुआ फार्मर की एक साइकिल. इसके अलावा आप एक साइकिल और बना सकते हो जिसमें आप लिखोगे कि ग्राउंड वाटर के डिक्लाइन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी की वजह से जो वल्नरेबिलिटी आएगी उस वजह से क्रॉप फेलियर होगा. क्रॉप फेलियर होगा तो फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंक्रीज्ड मैलनरिशमेंट, और मैलनरिशमेंट के चलते फिर से पॉवर्टी आएगी. वो पॉवर्टी जो होगी दैट विल लीड टू इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, है ना, क्लाइमेट चेंज. तो ये आप एक लिख सकते हो कि कंज्यूमर जो होता है वो उसके लिए फूड सिक्योरिटी का इशू कैसे आ सकता है, और एक फार्मर के लिए फूड सिक्योरिटी का इशू कैसे आ सकता है, बिकॉज दिस वुड लीड टू इंक्रीज इन द पॉवर्टी ऑफ द फार्मर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन द फार्मर वुड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट. तो ये दो डायग्राम आप अपने अलग अलग तरीके से इसमें बना सकते हो. अब अगर इसमें फैक्ट्स बताई जाए तो आप ये लिख सकते हो कि जो एलुवियल प्लेन जो है विच इज द गैंजेटिक प्लेन इज कॉल्ड एज द एलुवियल प्लेन. राइट, द एलुवियल प्लेन इज क्वाइट पोरस इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें पानी जो है काफी हद तक परकोलेट करता है. नाउ throughout the year the availability of the surface water is quite good in the Gangetic plain. That's the reason because of it throughout the history since last century or so what we have seen is the amount of water, groundwater in the Gangetic plain has remained quite high.
However, after green revolution, तो green revolution का नाम इसमें लिखना जरूरी है. So after green revolution, the overall usage of water has increased, क्योंकि green revolution ने सिर्फ agriculture production नहीं बढ़ाया, उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल इनपुट्स का भी यूज ज्यादा कर दिया. तो एग्रीकल्चरल इनपुट्स में एक इनपुट आता है वाटर भी. तो वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर काफी हद तक निकाला गया बाहर थ्रू ट्यूबवेल इरिगेशन एंड ऑल. तो आप अगर देखो तो नदर्न प्लेन के अंदर जो स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स में ट्यूबवेल की संख्या काफी ज्यादा है. इस वजह से ग्राउंड वाटर काफी हद तक निकाला जाता है. नाउ इन ऑर्डर टू गिव यू वन फैक्ट, 1.6 सेंटीमीटर डिक्लाइन पर ईयर in the groundwater level of the Gangetic Plain, this is something which has been noted. तो ये एक फैक्ट आप लिख सकते हो. भारत में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा रीजन जो है दैट इज बेसिकली यूजिंग ग्राउंड वाटर फॉर द इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड more than 80% of the agriculture production is directly or indirectly dependent upon the groundwater. तो इसका मतलब जब ग्राउंड वाटर की कमी आएगी तो ऑब्वियसली उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, एंड दैट विल शो इन द फूड सिक्योरिटी इशू. ठीक है. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये जो हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनाई है, इनसे आपको काफी अच्छे हद तक आइडिया मिल सकती है कि हम कैसे फूड सिक्योरिटी को बता सकते हैं इसमें. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस, हाउ आर दे ट्रिगर्ड. अब देखो सवाल ये बहुत ही आसान है. जिसको पता है कि नदर्न और सदर्न लाइट्स क्या होते हैं वो ये इस सवाल को काफी आसानी से आंसर कर सकते हैं. तो अगर आप देखो हमारी पृथ्वी का एक जियोमैग्नेटिज्म होता है. सो आवर अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट. व्हाई आवर अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट? बिकॉज what happens is the inner core and the outer core is there within the earth surface. The inner core is in the solid state और outer core is in the liquid state. दोनों की दोनों लोहे के बने हुए हैं, लोहा और निकेल, आयन और निकेल. Now the outer core is in the liquid state which keep revolving around the inner core. This results into formation of the electromagnetic force. This electromagnetic force is the reason because of which earth has a geomagnetism. ठीक है. तो ये जो जियोमैग्नेटिज्म बना है यहाँ पे, इस वजह से एक अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है. Now if you see the structure of this magnetic field, it is compressed towards the sun side and it is elongated towards the other side, the night side. What happens is, because of the coronal mass ejection from the sun, some solar winds containing some charged particles, a significant amount of charged particles, they come towards the earth. Now when they come into contact with our magnetic field over here, the magnetic field displaces them from their original path towards the polar region. तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी मैग्नेट अगर आप लो तो उसके जैसे दो पोल होते हैं, तो वहीं से उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है. तो जनरली व्हाट वी हैव सीन इज कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वो आके इकट्ठा होता है, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ विच इट इज रिलेटिवली वीकर ओवर देयर. नाउ the charged particles which are coming from the wind, these charged particles can come all the way and now they will enter into the north pole and the south pole. Now होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में सबसे जो एग्जॉस्फेयर के नीचे का स्ट्रक्चर है वो है थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर में एक आयनोस्फेयर भी होता है, एंड दिस आयनोस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लेयर बनी हुई रहती है. व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर दीज चार्ज पार्टिकल्स come into the atmosphere and in the polar region when they come into contact with these nitrogen ions and oxygen ions which are present in the ionosphere, they release the pink and the green light. Sometimes that light can be red as well, and that's how basically you can see the northern and southern lights. जब वो northern hemisphere में होते हैं in the region such as Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, in those countries they are called as northern lights or aurora borealis. While in the southern hemisphere they occur in the region of Chile, Argentina, New Zealand, Australia. Now in these countries they are called as aurora australis. So this is how these aurora borealis and the aurora australis gets triggered. Now let's discuss the question number 16. उसमें पूछा है what is a twister and why are these twisters formed majorly in the areas surrounding Gulf of Mexico. अब इस सवाल का जवाब देखते हैं. ट्विस्टर जो है ये एक स्लैंग नेम है जो यूएस में यूज किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में यूज किया जाता है टॉर्नेडो के लिए. सो टॉर्नेडो इज अ कॉमनली यूज नेम फॉर दिस वन. नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ टॉर्नेडो एंड व्हाई दे अकर मोस्टली इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको और द नियर द गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन. Tornadoes are generally associated with the thunderstorms. Now these are the strong updraft moving of an air which generally form
from the top of the cloud which has formed in the thunderstorm, and they come down all the way spiraling, creating a small funnel at the bottom, and at the top they are protruded, like they are wide, and that's how they form. Because of their nature they are called as twisters in North America. Now if you see, in North American region there is a tornado alley which is there close to Gulf of Mexico, and it is these regions they are talking about where the tornado mostly occur. Now understand this. First of all, as I said, the tornadoes are associated with the occurrence of thunderstorm. You need to understand how exactly thunderstorm forms. Thunderstorm होते क्या है? तो thunderstorm is basically a strong tertiary mechanism occur because of the convective action. बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म हो जाती है तो उस वजह से हवाएं तेज़ी से ऊपर राइज करती है. जब तेज़ी से ऊपर राइज करेगी, so ultimately that will create condensation and formation of cloud. थंडरस्टॉर्म जो है वो 3 लाइफ फेजेस से जाता है, जिसमें पहले फेज में जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से तेज़ी से ऊपर जाएगी और कंडेंसेशन करके क्लाउड बनाएगी. देन आफ्टर दैट जो हवा ऊपर गई है वो नीचे भी तो आएगी, सो एयर गोज अप एंड अलॉन्ग विद दैट द एयर कम्स डाउन एज वेल. अब इस सिचुएशन में 2 तरीके के थंडरस्टॉर्म बनते हैं, एक सिंपल थंडरस्टॉर्म, एक सुपरसेल थंडरस्टॉर्म. जो ये ट्विस्टर्स है ना, ये सुपरसेल थंडरस्टॉर्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं जनरली, जिसमें जहां से हवा ऊपर जा रही है उसके दूसरे साइड से, मतलब उसके बाहर वाले साइड से हवा गोल गोल घूमते घूमते नीचे आती है. तो यहां पर ऊपर जाने वाली हवा और नीचे आने वाली हवा ये एक दूसरे से टकराती नहीं है सुपरसेल थंडरस्टॉर्म में. और सिंपल थंडरस्टॉर्म जो होता है उसमें हवा जो ऊपर जाती है उसी जगह से नीचे आती है, इसीलिए सिंपल थंडरस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स. व्हाइल इन द थर्ड स्टेज ऑफ दिस द ओनली अपड्राफ्ट ऑफ द एयर स्टॉप्स एंड ओनली डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर रिमेन्स. क्योंकि बारिश हो गई दूसरे स्टेज में, मैच्योर स्टेज में, और उस वजह से फिर थर्ड स्टेज में आते आते जो है ऊपर मूव करने वाली हवा रुक जाती है, और इसी तरीके से थंडरस्टॉर्म के साथ साथ ट्विस्टर्स भी खत्म हो जाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज हाउ एग्जैक्टली ट्विस्टर अकर्स. ये सुपरसेल थंडरस्टॉर्म में जब हवाएं ऊपर जाती है और वो जो क्लाउड बनाती है, तो ऊपर का जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, इन दैट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड द huge amount of water droplets are there, and it is said that these water droplets provide the latent heat which acts as the energy source for the formation of the tornado. Now the air which is coming down, that comes down with a very strong force, and that too rotating, and it touches the ground like the trunk of an elephant, and that results into formation of the tornado. ठीक है, अब ये समझ में आया आपको. अब इसमें समझो कि थंडरस्टॉर्म की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो कैसे बना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कन्वेक्टिव एक्टिविटी. जमीन बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए, बिकॉज दिस लाइज मोर और लेस क्लोज टू ट्रॉपिकल एरियाज, दैट्स व्हाई द सरफेस ओवर हियर बिकम्स क्वाइट वार्म. तो यहां से जो वेस्टर्ली विंड है, तो वेस्टर्ली विंड आएंगे विच आर कमिंग फ्रॉम द वाटर बॉडी. तो आप अगर यहां पर देखो, गल्फ ऑफ मेक्सिको में पानी है और ये लैंड मास से सराउंडेड है, इसीलिए जो ये आसपास की लैंड है ना, इस लैंड पर मॉइस्चर का सप्लाई ज्यादा बेहतर होगा. मॉइस्चर का सप्लाई बेहतर होता है, इसका मतलब दिस इज अ वार्म विंड associated with lot of moist air, moist water along with it, and along with that the air which is coming from the north, ये होती है cold polar wind जो dry होती है. तो moist air coming from the Gulf of Mexico which is warm, and the cold dry air which is coming from the north. अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ही क्यों होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की वजह से. गल्फ ऑफ मेक्सिको इज अ गल्फ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय द लैंड मास, राइट. तो इसी वजह से यहां से जो भी विंड आएगी वो लैंड की तरफ तो जाएगी, इसीलिए लैंड के ऊपर जो है मॉइस्ट हवा आएगी. दूसरी बात ऐसा है कि यहां पर कोल्ड एंड द वार्म विंड्स, बोथ ऑफ देम मीट ईच अदर, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी. सो दिस इज द सेकंड कंडीशन. And the third condition is near Gulf of Mexico the landmass is quite flat in nature. इसीलिए जो हवाएं आती है, the cold air coming from the north and the warm air coming from the south, they can collide with each other nicely, and that results into formation of the twisters. तो उबड़ खाबड़ अगर जमीन होती, बहुत ज्यादा माउंटेनस एरिया होता, तो वहां पे शायद ट्विस्टर इतने आसानी से बन नहीं पाता. बट बिकॉज द सर्फेस इज फ्लैट ओवर हियर, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्विस्टर्स ओवर हियर, द टॉर्नेडोज ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स इन दिस लोकेशन. अब मैंने यहाँ पर एक कॉजेज ऑफ ट्विस्टर भी लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखे वार्म मॉइस्ट एयर मीट्स द कोल्ड ड्राई एयर, जो मैंने आपको बताया. इसके साथ साथ सुपरसेल थंडरस्टॉर्म की कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. थर्ड हमने लिखा है हाई विंड शेयर. हाई विंड शेयर क्या होता है, देखो जैसे साइक्लोन बनने के लिए लो विंड शेयर की जरूरत होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, तो उसी तरीके से जो आप जो टॉर्नेडो या फिर थंडरस्टॉर्म बनता है उसके लिए हाई विंड शेयर की जरूरत होती है. व्हाट इज हाई विंड शेयर. आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप खड़े हो तो वहां पे हवाएं बहुत ही आराम से चलती है, मगर यही अगर आप उसके टॉप फ्लोर पे चले जाओ, 20वें फ्लोर पे चले जाओ, वहां पे हवाएं तेजी से चलती है. तो दिस इज कॉल्ड एज विंड शेयर, जिसमें हवाओं का रुख, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द विंड, एंड अलोंग विद दैट द स्पीड ऑफ द विंड, दैट वेरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली.
जब हवाओं का कि विंड के डायरेक्शन में और स्पीड में अंतर होगा, वो विपरीत दिशा में होगी, तो इन दैट केस द विंड शेयर विल बी हायर। जब थंडरस्टॉर्म बनना होता है तब इस विंड शेयर ज्यादा होने की जरूरत होती है, एंड दैट्स व्हाई इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको बिकॉज ऑफ दिस हाई विंड शेयर कंडीशन, क्योंकि यहां पर क्या है, कोल्ड और वार्म एयर मीट कर रही है, दैट क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी एंड इट इंक्रीजेस द विंड शेयर, एंड दैट्स व्हाई ओवर हियर द थंडरस्टॉर्म फॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म बनेगा तो टॉर्नेडो तो उसके साथ बनेगा ही बनेगा, बिकॉज जनरली टॉर्नेडोज आर एसोसिएटेड विद सुपरसेल थंडरस्टॉर्म्स। एंड द सेकंड इज अपड्राफ्ट टिल्ट्स द रोटेशन ऑफ द एयर। जो अपड्राफ्ट होता है वो हवा के रोटेशन को बदल देता है, तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच टॉर्नेडो अकर्स। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखनी थी।